Hello everyone, how are you all? Guys, I welcome you back on Unacademy CA Foundation Pro. Today we are going to do a comprehensive revision of the chapter number 2, that is unit number 2, that is consumer behavior. और सबसे पहले आज हम लोग जिसका रिवीजन करने वाले हैं वो है indifference curve. So what exactly is the indifference curve? What are the assumptions of the indifference curve? What are the properties of the indifference curve? What is budget line and what is consumer equilibrium in case of ordinal utility? So this is what all we are going to see. एंड उसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो हम लोग और भी रिवीजन करेंगे रिगार्डिंग द कंज्यूमर सरप्लस एंड रिगार्डिंग द मार्जिनल यूटिलिटी. So very fast guys, let's get started with the revision. But before that, let me tell you guys, we have come up with a very great batch right now. जो भी स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा लेट डिसीजन लिया है कि हमें भी सीए फाउंडेशन करना है, so उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने मिशन सक्सेस बैच इसको लॉन्च किया है गाइस. It has already been started. If you want to take the subscription, you can definitely take an admission into this batch. मैं आप लोगों को सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी फटाफट से बता दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं आप लोगों से स्पेशल क्लास पर रेगुलरली मिलता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. जी हाँ, रोज 3:15 दोपहर में 1 घंटे के लिए मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ स्पेशल क्लास पर. बहुत ही अमेजिंग सेशंस ले रहा हूं मैं गाइज, और आप लोग जाकर देखिएगा. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के चैप्टर नंबर 3 के सेशंस अभी चल रहे हैं. वहां पर बीच में हम लोगों ने एक क्विज भी कंडक्ट कर लिया है, हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है. सो इट इज गोइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? So don't forget to follow me on the Unacademy, because otherwise you will miss out my special class session as well, right? और आप लोगों को जो भी मेरे स्पेशल क्लास के सेशन देखने हैं, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कोड DAGA10 and you can unlock that particular class absolutely free of cost, right? And let me tell you about the subscription prices. तो subscription prices बहुत ही reasonable है Unacademy पर. 24 months का subscription 19,800, 12 month subscription 14,400, 6 month subscription 10,800 only. You can apply the code DAGA10. And guys, ये वाला जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, एंड यस, live test and quizzes as well. And apart from it, let me tell you guys, we are also having the iconic subscription plan. And iconic subscription mein, what are you getting actually? You're getting the personal coach, you're getting printed books, you're getting evaluated test series and discussion channel. This is absolutely amazing. All the benefits of the plus, और ये सारी चीजें एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगी. 12 month subscription 31,500 and 6 month subscription 22,500. DAGA10 is the code. Don't forget to apply this code, right? कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस, कॉम्बो में यू आर गेटिंग फाउंडेशन, यू आर गेटिंग इंटरमीडिएट, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस इज 28,800 ओनली. एंड यहाँ पर 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस है 22,500 ओनली. गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग. And you can apply the code DAGA10. DAGA10 is the code. You can apply this code and you can just get started with your classes, right? और यहाँ पर कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस अगर आप देखोगे तो 59,400 and 12 months 44,550. You can apply the code DAGA10 and you can just get started with your plus classes. डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी गाइस, डिस्क्रिप्शन में you can just check it out over there. वहां पर आप लोगों को दिखेगा कॉम्बो की लिंक एंड कॉम्बो आइकॉनिक की लिंक. वहां पर आप लोगों को एक और लिंक दिखेंगे जहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन द अनअकैडमी एज वेल. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप. एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप लोगों ने फाइनेंस बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग जा सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज गाइस here I got a very great content for you about the finance, about the stocks, about the mutual funds. Then regarding the small cases, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर सेशंस होते हैं, इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं. You can take advantage of it and you can learn many more things about the finance. So yes guys, do not forget to subscribe this and share it with your friends, those who are interested to watch about the stock market and mutual funds, right? So finance buddies is for you. So फटाफट से अभी हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस रिवीजन की. So let's get started guys with the revision. So मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ. सबसे पहले we are starting with the indifference curve, right? So indifference curve जो होता है, very properly try to understand. ये जो होता है ये based on ordinal utility. This is based on ordinal utility. Now what is ordinal utility? ठीक है,
तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अगर उसके बारे में अगर मैं बात कहूं, ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस, बिकॉज यहां पर देखना दिस सीम्स टू बी वेरी लॉजिकल। क्यों लॉजिकल लगता है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर अगर यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन को हम लोग यहां पर प्रियोरिटाइज करेंगे, रैंकिंग करेंगे, तो दिस मेक सेंस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी वेर वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली काउंट दैट इन द यूनिट्स, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर ठीक नहीं था, ठीक है। सो डेफिनेटली आई फील दैट ये ऑर्डिनल यूटिलिटी इज मच मोर लॉजिकल। इंडिफरेंस कर्व आई फाउंड मच मोर लॉजिकल। ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में किसने यहां पर उसके बारे में चर्चा करी थी, देखते हैं, देखना यहां पर इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इट वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। आप लोगों को ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि इंडिफरेंस कर्व, द ऑर्डिनल एनालिसिस था ये, ऑर्डिनल एनालिसिस of demand, and here we will discuss the one given by Higgs and Allen. It is based on the indifference curve. ठीक है, अब बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एंड इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives the same satisfaction। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आ सकता है, सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सो यहां पर मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी मार्क करवा कर देता हूं। एक सेकेंड, अच्छे से एकदम आप लोगों को सारी चीजें हम लोग मार्क करवा कर देंगे। हिग्स एंड एलन एमसीक्यू, ऑर्डिनल यूटिलिटी एमसीक्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एमसीक्यू, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एमसीक्यू, राइट। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन द इंडिफरेंस कर्व give equal satisfaction to consumer, the consumer is indifferent among them, indifferent among them। इसका मतलब क्या होता है सर, नहीं समझा, ठीक है, समझाता हूं मैं। देखना यहाँ पर indifferent मतलब क्या, मैं यहां पर ही आप लोगों के सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर बताऊंगा और आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगा। indifferent माने क्या, indifferent माने कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, point C, point D. So here is the point A, here is the point B, here is the point C, and here is point D. There are two products. Let us assume I am taking your burger and I am taking your pizza. Any product you can take, any product we can take pizza. So what they are telling, they are getting same level of satisfaction. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ same level of satisfaction। तो जब इन लोगों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, दे आर इनडिफरेंट, दे आर इनडिफरेंट। मतलब वो अगर पॉइंट ए पर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट बी पर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट सी पर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड पॉइंट डी पर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर मतलब क्या, यहां पर वो इक्वली सेटिस्फाइड है ऑन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। जस्ट व्हाट इज चेंजिंग इज द प्रोपोर्शन ऑफ पिज्जा एंड बर्गर, दैट्स इट। इतना ही चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पर वो ज्यादा पिज्जा खाता है और पॉइंट ए पर ये कम बर्गर खाता है, लेकिन पॉइंट डी पर कोई एक इंसान अगर वो पॉइंट डी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो बर्गर ज्यादा खा रहा है और वो पिज्जा कम खा रहा है, लेकिन दे आर इक्वली सेटिस्फाइड ऑन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, राइट। व्हाट इज चेंजिंग इज जस्ट द प्रोपोर्शन। सो इनडिफरेंट का मतलब है कि ऑन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, दे आर इक्वली सेटिस्फाइड, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। If the consumer equally prefers the two product bundles, then the consumer is indifferent between the two bundles. The indifference curve is also called as, MCQ के लिए एग्जाम में आ सकता है, indifference curve is also called as iso utility curve or equal utility curve. आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व, बोलो आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व, बोलो आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। यस गाइस, अरे यार डोंट वरी, तुम लोग बिंदास मेरे पीछे पीछे बोलना है, तो तभी तो रिवीजन होगा यार, याद कैसे रहेगा। शर्माना नहीं है, तुम अपने घर पर ही अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में रिवीजन लेक्चर देख रहे हो। एंजॉय दिस सेशन गाइस, एंजॉय दिस सेशन, ठीक है। सो इनडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज आईसी यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है। सर जबरदस्त पढ़ाते हो सर, आपने इतना सा पढ़ाया और इतने सारे एमसीक्यूज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डागा सर क्लास, राइट। आगे बढ़ते हैं।
सर 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 एक मिनट सर, रुक जाइए, बोलिए सर ये क्या है, क्या है सर ये? दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, substitution, substitution. So this is MRS, that is marginal rate of substitution. So what is this? Let me explain you this. ठीक है, देखिए यहां पर कुछ कॉम्बिनेशंस दिया गया मुझे, A, B, C and D. ओके सर, फाइन। यहां पर देखिए मैंने फूड पहले सिर्फ एक यूनिट फूड का कंज्यूम करता था, ठीक है सर, फिर मैंने एक और यूनिट बढ़ा दिया फूड का, ठीक है सर। सर क्यों बढ़ाया? अरे देखो ना, मैंने जो क्लॉथ के लिए जो भी था ना, क्लॉथ के लिए जो भी था मैंने उसको सैक्रिफाइस किया, कितने से? 6 से, और मैंने एक फूड का कंजम्पशन इंक्रीज किया, ओके। फिर बाद में मैंने फिर से सैक्रिफाइस किया, कितना? 2 से सैक्रिफाइस किया, जी हाँ 2 से सैक्रिफाइस किया। क्यों? मुझे एक फूड का कंजम्पशन इंक्रीज करना था, फाइन, ठीक है, अग्रीड सर। फिर मैंने एक और सैक्रिफाइस किया, ओके, और फिर मैंने एक और यहां पर इंक्रीज किया। सर ये सैक्रिफाइस गेन, सैक्रिफाइस गेन, सैक्रिफाइस गेन, सैक्रिफाइस गेन क्या बोल रहे हो? रुको मैं बताता हूं ना आपको। ये हमारा रफ पेज है, यहां पर ना मैं रफ पेज पर सारी चीजें एकदम आसान करवा देता हूं, ठीक है। जब भी मैंने ये रफ पेज को खोल दिया समझ लेना कि बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हो सर आप, यस। सो देखना यहां पर सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेनिंग यूनिट, सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेनिंग यूनिट। सर मतलब क्या सर? अरे देखो यहां पर पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, देखना अभी यहां पर कैसे मजा आने वाला है, ठीक है। देखो यहां पर सर कितना सैक्रिफाइस हुआ था पॉइंट ए पर? 6, पॉइंट ए पर नहीं, पॉइंट बी पर हुआ था, सॉरी, ठीक है, बी पर। ए को छोड़ दो अभी, ए तो बेस है ना, ठीक है। बी पर कितना सैक्रिफाइस हुआ? 6। और कितना गेन हुआ? फूड एक गेन हुआ ना, हाँ सर 6 से 4 हुआ, मतलब कितना सैक्रिफाइस हुआ? 2 का सैक्रिफाइस हुआ, ठीक है सर। कितना गेन हुआ? 1। सर उसके बाद सर कितना हुआ था सर? वो 4 के बाद क्या हुआ सर? 3 हुआ ना, तो 3 मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? 1, ठीक है सर। 1 सैक्रिफाइस किया, कितना गेन किया? 1। तो मतलब सर यहां पर रेशियो ऐसा है क्या? 6:1। हाँ सर ये रेशियो क्या डिक्रीजिंग है क्या? हाँ ये रेशियो डिक्रीज है। सर ये क्या था? ये एमआरएस था ना, जी हाँ ये एमआरएस था। तो सर ये एमआरएस जब डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जब एमआरएस डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या बता रहा हूं मैं? when IC curve is convex to, when IC curve is convex to origin, इसका मतलब क्या है? MRS is decreasing, MRS is decreasing। इसको डिटेल में मैं फिर से आने वाला हूं, यही पॉइंट पर आने वाला हूं। अभी एक बार हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में MRS पर फिर से आने वाला हूं। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, राइट। मैं फिर से होगा MRS पे, मुझे और कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है, ठीक है, बहुत कुछ बोलना है। सबसे पहले ये देख लेते ना एक बार आईसी कर्व। बच्चा पार्टी क्या मैंने यहाँ पर आईसी कर्व निकाला था? हाँ सर निकाला था आपने। बच्चा पार्टी क्या मैंने यहाँ पर ऐसे पॉइंट ए बी सी डी दिया था? हाँ सर बिल्कुल दिया था सर। क्या मैंने आईसी कर्व निकाला था ऐसे ही? हाँ सर। सिर्फ यहाँ पर फूड के जगह मैंने क्या लिखा था? बर्गर लिखा था, ठीक है, और कुछ नहीं। और मैंने यहाँ पर क्लॉथिंग के जगह पर पिज्जा लिखा था, और कुछ नहीं, ठीक है। कौन से भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ये जो ऐसा वाला कर्व है क्या इसको कॉन्वेक्स कह सकते हैं? जी हाँ सर बिल्कुल कॉन्वेक्स कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये ओरिजिन ये है, ओरिजिन ये है, और ओरिजिन को ये कॉन्वेक्स है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स, आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है सर। और क्या बोलेंगे? बोलेंगे, रुक जाओ एक सेकेंड। पॉइंट ए, ठीक है, क्या? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पे हम लोग क्या है? हम लोग वहां पर इनडिफरेंट है। क्या है? इनडिफरेंट। देखा था क्या हम लोगों ने? हाँ मतलब क्या सर? मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ
सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पर हम लोग को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, जी हाँ, आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दैट्स इट गाइस। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोग को एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। आई एम राइटिंग ओवर योर एमसीक्यू, आई एम राइटिंग ओवर योर एमसीक्यू, आई एम राइटिंग ओवर योर एमसीक्यू। सर ये क्या है सर? इंडिफरेंस मैप म्हणजे व्हाट? इंडिफरेंस मैप म्हणजे व्हाट? देखना यहां पर, इंडिफरेंस मैप मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व। ओके, सो यहां पर देखिए, ये पहला वाला आईसी कर्व है, ये दूसरा वाला आईसी कर्व है, ये तीसरा वाला आईसी कर्व है, ठीक है। एक सेकेंड ज्यादा हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम थिकनेस कम कर देते हैं इसकी, ठीक है। यस, ये देखिएगा, ये फर्स्ट आईसी कर्व, ये सेकेंड आईसी कर्व, ये थर्ड आईसी कर्व। सर इसका मतलब क्या है? जब बहुत सारे आईसी कर्व होते हैं तो क्या उसको क्या कहते हैं? उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। सो कलेक्शन ऑफ मेनी आईसी कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, राइट? ओके, डन सर, डन डन आर डन। इट डिपिक्ट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब सर हमें समझ में कैसे आएगा कि कंज्यूमर कहां पर ज्यादा सेटिस्फाइड है? सर मैंने यहां पर पॉइंट ए किया, हाँ सर मैंने यहां पर पॉइंट बी किया, अच्छा ठीक है सर मैंने यहां पर पॉइंट सी किया, एब्सोल्युटली फाइन। सर एक कंज्यूमर कहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है? सर ये कैसे हम लोग समझेंगे? यहां पर तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना सर आपने। आप कह रहे थे कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट वो सेम आईसी कर्व पे होता है। यहां पर आईसी कर्व राइट टूवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? राइट टूवर्ड शिफ्ट। सो यहां पर एक प्रॉपर्टी सामने आएगी आईसी कर्व की, उस प्रॉपर्टी का नाम है क्या? हायर द आईसी कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर द आईसी कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर देखिएगा, हायर द आईसी कर्व, अरे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, हायर द आईसी कर्व, higher the level of satisfaction. Getting it everyone? मतलब point C पर I am more satisfied. So I am point C पर consumer is more satisfied. Is more satisfied as compared to point A and point B. Getting? Yes. गेटिंग सर, गेटिंग एकदम 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 अच्छे से समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए गाइस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पर एमआरएस का फुल फॉर्म इन्होंने दिया है। यहां पर मैंने ऑलरेडी ये पहले ही करवा दिया था और मैं यहां पर इसको मार्क भी कर देता हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी वी हैव डन दिस। अब यहां पर उन्होंने इसका फॉर्मूला भी दिया है, MUX upon MUY. So we notice that MRS is falling. That is, as the consumer has more and more foods, he is prepared to give up less and less unit of clothing. तो यहाँ पर देखा ना हम लोगों ने, वो कैसे क्या कर रहा था, कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था, कुछ गेन कर रहा था, कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था, कुछ गेन कर रहा था। सो वो वाला जो सिनारियो था ना, दैट वाज व्हाट, दैट वाज व्हाट, दैट वाज डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, ठीक है। So, यहां पर देखिए, आप लोग को एक और सवाल मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। मोस्ट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर एंड एमआरएस वुड रिमेन कांस्टेंट इफ दे कुड नॉट सब्स्टिट्यूट वन अनदर परफेक्टली। सर मतलब क्या? मैंने कहा था मैं एमआरएस पे फिर से आऊंगा। दो गुड्स एक दूसरे से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सो वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। सो किसी को सैक्रिफाइस किया तो किसी का इंक्रीज होना जरूरी है क्या? इट इज नॉट जरूरी। इन दैट केस अगर यहां पर हम कह रहे हैं कि MRS मतलब सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेनिंग यूनिट जो है, अगर उनका रेशियो सेम होता है, अगर उनमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कोई भी पैटर्न नहीं है, अगर वो सेम है, सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज माय MRS इज अ
constant, in that case IC curve is the straight line. ठीक है, मैं आपको 3 सिनारियोस बताऊंगा. सबसे पहला सिनारियो हम लोगों ने देखा कि MRS is decreasing. MRS is decreasing. ठीक है, ये एक नॉर्मल सिनारियो है. दूसरा सिनारियो मैं आपको बताता हूं कि MRS is constant. एक और सिनारियो मैं यहां पर लिखता हूं, MRS is increasing. एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना. MRS is decreasing होगा तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, IC curve is convex to origin. When I am telling that MRS is constant, we are going to write IC curve is straight line. When I am saying MRS is increasing, so यहाँ पर IC curve is concave to origin. ये सब कुछ आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है. सर अगर कुछ नहीं दिया है सर और सिर्फ इतना ही पूछा कि MRS is convex to origin, MRS is straight line और MRS is concave, तो फिर क्या लिखेंगे, तो फिर हम लोग लिखेंगे कॉन्वेक्स. अगर कुछ नहीं आया तो हम लोग, अगर स्पेसिफिक सिचुएशन दी होगी तो हम लोग इस हिसाब से करेंगे. राइट एवरीवन, फटाफट से इसको कॉपी डाउन कर लेना. So everyone has written this. I hope that. फटाफट से आगे बढ़ते guys. And now let us actually discuss about some of the properties of IC curve. Guys, let's not read this property. Let's actually draw the properties and let us understand from it. ठीक है? So हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे अभी के अभी. This is gonna be really very interesting. ठीक है? So सबसे पहले यार थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं. राइट, ओके. सो दिस वुड बी फन. अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. यस. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये कोई बात नहीं. हाँ, ये रहा अभी यहाँ पर एक ग्राफ. सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि there is a combination of two goods over here. जैसे कि यहां पर हम लोगों ने पिज्जा लिया है और यहां पर हम लोगों ने बर्गर लिया है. ठीक है, अब देखना यहां पर मैंने एक और IC कर्व निकाला और एक और IC कर्व निकाला. यहां पर है IC1, IC2 and IC3. So what is the first property? The first property here goes something like this. Higher the IC curve, higher the level of satisfaction. So I would be more satisfied on point A or on point B or on point C. The answer over here would be C, because higher the IC curve, higher the level of satisfaction. So IC3 पर वो सबसे ऊपर है तो वहां पर जो भी पॉइंट्स होंगे वहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. राइट. सेकेंड, वन मोर ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी द अदर प्रॉपर्टीज. ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर एक मैंने IC कर्व निकाला, लेट अस नेम इट एज IC. राइट. मैंने एक और यहां पर IC निकाला, दैट इज IC1. नाउ दिस इज समथिंग फिशी. सर ये वाला कर्व तो नीचे है, राइट, ये वाला कर्व तो ऊपर है, राइट. सो यहां पर सर लेस सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट, यहां पर सर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट. सो हाउ कैन देयर बी अ पॉइंट वेयर दे बोथ आर मीटिंग ईच अदर? एब्सोल्युटली सर, दिस इज नॉट पॉसिबल. Absolutely sir, this is not possible. Yes, you're right, this is not possible. So we are going to write here 2 IC curve never intersect each other, never intersect each other.
So two IC curve never intersect each other, right? यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, higher the IC curve, higher the IC curve, क्या होगा, higher the level of satisfaction, right? So मैं लिखूंगा higher the IC curve, higher the level of satisfaction, higher the IC curve, higher the level of satisfaction, right? Okay, so we have done with this first property. Yes sir, we are done with this as well, we are done with this as well. Yes, second. अभी हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं. अगेन वन मोर ग्राफ सर. जी हाँ, वन मोर ग्राफ. जस्ट अ सेकेंड. सर ये जो आप आईसी कर्व निकालते हो, यस सर, ये एक्स एक्सिस पे टच क्यों नहीं किया, और सर ये वाई एक्सिस पे भी टच क्यों नहीं किया? लेट मी टेल यू. टू IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अजम्पशन में क्या है कि कम से कम हम लोगों को एक कॉम्बिनेशन चाहिए, कम से कम हम लोगों को दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है. मतलब मुझे मिनिमम से मिनिमम एक पिज्जा तो लेना ही पड़ेगा यहां पर भी अगर मैं हूं तो. यस, और या फिर मैं यहां पर हूं अगर, तो मुझे कम से कम एक बर्गर तो लेना ही पड़ेगा. सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि मुझे दोनों गुड्स लेना ही पड़ेगा चाहे कितना भी मिनिमम क्यों ना हो. तो इसीलिए ये पिज्जा डायरेक्टली ये पूरा की पूरा नीचे नहीं जाएगा, हम लोगों को यहां पर दो गुड्स को कंपेयर करना ही है. देयरफॉर आई एम राइटिंग ओवर हियर टू IC कर्व, टू IC कर्व, sorry not two, sorry IC curve, just IC curve, IC curve never intersect either of the curves, either of the axis, sorry, either of the axis. It is not going to touch x axis nor it is going to touch y axis. It is just going to be like this only, जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही. Right? Getting everyone? I hope that you got it. Next point sir, next point, one more point over here. सर कितने पॉइंट्स है, रुको यार तुम लोग, बहुत पॉइंट्स है. राइट, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा. ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया. जस्ट अ सेकेंड. यस सर, इसका मतलब क्या है? IC curve is convex to origin and IC curve is downward sloping. Yes, IC curve is convex to origin. एक और यहीं पर लिख देता हूं, IC curve is downward sloping. क्या ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग. राइट ना? सो यहां पर देख लीजिए गाइस, हम लोगों ने क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज को देखा है. IC कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. यस. IC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. यस. IC कर्व कैन नाइदर टच द x axis and y axis. Yes. Two IC curve never intersect each other. Yes. And higher the IC curve, higher the level of satisfaction. Yes, absolutely yes. So guys, अगर हम लोग अभी यहाँ पर आकर देखते हैं प्रॉपर्टीज में. So let us see, we will underline one things over here. ठीक है, हम लोग इसको अंडरलाइन करते हैं. ये देखना, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट. यस, हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख लिया. राइट ना? Indifference curve are always convex to origin, convex to origin, convex to origin. Because of what? Because of MRS, that is marginal rate of substitution के वजह से ये नीचे 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 जाता है.
और हम लोगों ने इसके ऊपर और दो सिचुएशंस भी देख लिए। अगर वो कांस्टेंट रहेगा MRS तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर MRS इंक्रीजिंग है तो वहां पर वो कॉनकेव रहेगा, राइट ना। ओके, देखना यहां पर indifference curve can never intersect each other. इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज IC1 पर मुझे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, IC2 पर मुझे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि वो दोनों एक पॉइंट पर मिले, बिकॉज दोनों की सेटिस्फेक्शन लेवल्स वहां पर डिफर करती हैं, राइट। हम लोगों ने ये भी देख लिया, हायर द IC कर्व higher the level of satisfaction, higher the IC curve, higher the level of satisfaction। और क्या देखा, indifference curve will not touch either axis, it is not touching on the x axis, it is not touching on the y axis, so yes guys, we have also seen this, right? Okay, very good। और क्या है देखना यहां पर, बजट लाइन, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, देखिए यहां पर बजट लाइन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, यस, नाउ दिस इज द बजट लाइन, दिस इज द बजट लाइन। यहां पर मैंने लाया है सपोज फॉर एग्जांपल पिज्जा, और यहां पर मैंने लाया है सपोज फॉर एग्जांपल बर्गर, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। सर आपने यहां पर टच किया है, हाँ सर आपने यहां पर भी टच किया है, हाँ मतलब सर अगर मैं यहां पर हूं B पर, तो क्या मैं पूरा की पूरा पिज्जा खा रहा हूं और 0 बर्गर खा रहा हूं, यस। सर अगर मैं यहां पर हूं A पर, सो इसका मतलब क्या मैं पूरा की पूरा बर्गर खा रहा हूं एंड 0 पिज्जा, यस। तो सर ये IC कर्व में आपने टच नहीं किया था और बजट लाइन में आप टच कर रहे हो, इसका क्या कारण है, बिकॉज IC कर्व में देयर इज एन अजम्पशन दैट कि तुम लोग को कंपल्सरीली दो गुड्स को खरीदना ही है। बजट लाइन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बजट लाइन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है। बजट लाइन तो बस ये कॉम्बिनेशन बताती है अलग अलग प्रोडक्ट्स का जो तुम कंज्यूम करते हो, ठीक है। सो यहां पर देखिएगा बजट लाइन जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। सो बजट लाइन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर कंज्यूमिंग, राइट। सो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो ये पूरे लाइन पर फॉर एग्जांपल मेरा बजट कितना है, 1000 रुपए, तो यहां पर भी मैं 1000 रुपए स्पेंड कर रहा हूं, यहां पर भी 1000 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 स्पेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं पॉइंट सी पर हूं और अगर मैं पॉइंट डी पर हूं, तो यहां पर थोड़ा सा अलग होगा। पॉइंट सी पर क्या होगा, पॉइंट सी पर आई एम अंडर यूटिलाइजिंग माई बजट, सो यहां पर क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन। और पॉइंट डी पर क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन। तो पॉइंट सी पर अंडर यूटिलाइजेशन एंड पॉइंट डी पर ओवर यूटिलाइजेशन, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन के पॉइंट्स है। एंड ऑन पॉइंट, ये पूरे के पूरे लाइन पर मैं यहां पर फुल यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं पूरा कंज्यूम कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। सो सिर्फ यहां पर इस लाइन पर चेंज होगा तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शन चेंज होगा बर्गर का एंड पिज्जा का, बाकी सब कुछ तो एकदम 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 सेम होगा, राइट, बाकी सब कुछ एकदम सेम होगा। तो सर यहां पर एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, यस सर अभी तक आपने IC का बता दिया, यस सर अभी तक आपने बजट लाइन बता दिया, यस आपने IC कर्व के सारे प्रॉपर्टीज बता दिए, यस। आप कुछ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, तो उसका क्या हुआ बताऊंगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। रट्टा तो हर एक इंसान मार देता है लाइफ में, मार्क्स तो हर एक इंसान लेकर आता है, लेकिन लॉजिक नहीं समझ पाता है कि वो आंसर आया कैसे था। अरे यार ये क्या हो रहा है, यस। अब देखिए यहां पर ये है मेरा IC कर्व, जी सर। सर ये क्या है, ये मेरा बजट लाइन, जी सर। अभी इसको मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को मैं मर्ज करने वाला हूं, राइट।
इन दोनों को मैं मर्ज करने वाला हूं। सर इससे क्या होगा, देखते हैं इससे क्या होगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये देखिए बच्चा पार्टी, एक अद्भुत प्रदर्शन, किसका, अद्भुत प्रदर्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। देखिए ये है तुम्हारा, यहां पर आईसी कर्व मैं यहां पर निकालने वाला हूं। ये मेरी बजट लाइन। ओके सर, ओके। ये है मेरा IC1। एक सेकेंड, ये है मेरा IC2 और ये है IC3। ये है यहां पर पिज्जा, ये है यहां पर बर्गर, ठीक है। यहां पर है पॉइंट ए, यहां पर है पॉइंट बी, यहां पर है सी, यहां पर है डी, यहां पर है ई। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, where is the consumer satisfied fully? Whether he's satisfied on point A, point B, point C, point D और point E। अगर मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से जाऊं, आईसी कर्व के प्रॉपर्टीज के हिसाब से, सो हायर द आईसी कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो देयर शुड बी पॉइंट E ओवर हियर। अगर मैं आईसी कर्व के हिसाब से जाऊं तो पॉइंट बी तो कभी भी हो नहीं सकता है। लेकिन सर पॉइंट ई हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। वाई सर, वाई? बिकॉज गाइज मेरा उतना बजट ही नहीं है। मेरी बजट लाइन देखो उसके नीचे है, माई बजट लाइन इज डाउनवर्ड। मेरा उतना बजट है ही नहीं। दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो पॉइंट ई इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सो द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड ऑन पॉइंट ई बिकॉज ही इज नॉट हैविंग दैट मच रिसोर्सेज। उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, वो इतना कंज्यूम कर ही नहीं सकता है। सो पॉइंट ए सर, नो, पॉइंट ए हो ही नहीं सकता है बिकॉज पॉइंट ए पर, यहां पर ये देखो, ये IC1 पर है, सबसे लोअर आईसी कर्व पर है, और सबसे लोअर आईसी कर्व पर हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते बिकॉज यहां पर पॉइंट डी पर वी आर ऑन IC2 एंड वी वुड बी मोर सेटिस्फाइड ऑन IC2। सो देयरफॉर पॉइंट ए नहीं होगा, पॉइंट सी भी सर नहीं होगा बिकॉज पॉइंट सी भी IC1 पर है एंड एज कंपेयर टू पॉइंट सी, पॉइंट डी हो सकता है बिकॉज पॉइंट डी इज ऑन IC2 एंड पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी पर हम लोग बजट तो पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन we are not on the highest point on point A and C because we are on the lower IC, we are on the lower IC। लेकिन पॉइंट D पर मैं हायर IC पर हूं और मैं बजट भी पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। सो मतलब अगर मैं देखूं पॉइंट A, B, C, D and E को, the consumer is fully satisfied, the consumer is at equilibrium at point D। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देता हूं गाइस, पॉइंट E, द आंसर इज नो। वाई? वाई? बिकॉज कंज्यूमर के पास, ठीक है, कंज्यूमर इज नॉट हैविंग बजट। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं लिखकर, ठीक है। पॉइंट A and C, point A and C is on lower IC, lower IC। point B, sorry, point D is consumer equilibrium, consumer equilibrium। Why it is at consumer equilibrium? Because utilization is maximum and is on higher IC, it is on higher IC। So guys, I hope that you got it with this diagram।
तो यहां पर अगर मैं बोलूं दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी कर्व, क्या है ये? दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of IC, that is indifference curve के केस में। अगर मैं इसी का टेक्निकल पॉइंट देखूं, ठीक है, अगर मैं इसी का टेक्निकल पॉइंट देखूं तो इसका टेक्निकल पॉइंट क्या आता है पता है? जो बुक में जो डेफिनेशनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको क्या कहते हैं पता है? देखना, when IC curve is tangent, IC curve is tangent to budget line, IC curve is tangent to budget line, that point consumer is at equilibrium, consumer is at equilibrium। मतलब यहां पर हो गया वो पॉइंट D। So the technical definition over here goes something like this: when the IC curve is tangent to budget line, when IC curve is tangent to budget line, that point the consumer is at equilibrium. But we have seen this logically, understanding the budget line, understanding the IC curve, understanding the properties of IC curve, we have came to the conclusion over here that IC curve कब ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं हम लोग आईसी कर्व पर? आईसी कर्व कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? आईसी कर्व कब कॉन्केव रहेगा, कब कॉन्वेक्स रहेगा? एमआरएस क्या होता है? एमआरएस इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेनिंग यूनिट। वी हैव सीन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हेन इज द कंज्यूमर एट इक्विलिब्रियम। आई होप दैट गाइस you have absolutely got this right। सो प्लीज यू कैन नोट दिस डाउन। मैं आपको बुक में लेकर चलता हूं और आपको कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए यहां पर क्या किया है। यहां पर कंफ्यूज करने के लिए पांच आईसी कर्व डाल दिए हैं, पांच आईसी कर्व। देखना यहां पर, मतलब पॉइंट आर, पॉइंट एस, पॉइंट क्यू, पॉइंट टी, पॉइंट एच, मैं यहां पर भी डालता हूं, यहां पर भी राइट। सो बेसिकली ये तो 5 तो क्वेश्चन में आता नहीं क्योंकि बजट उतना है नहीं, 4 क्वेश्चन में आता नहीं क्योंकि बजट उतना है नहीं, एंड आईसी 1 एंड 2 पर भी नहीं होगा क्योंकि वो लोअर आईसी कर्व पर है। दो दे आर ऑन द बजट लाइन बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल, बट यस वी आर ऑन पॉइंट आईसी 3 बिकॉज वो सबसे ज्यादा हायर आईसी कर्व पर है और वो बजट भी पूरा ठीक से इस्तेमाल हो रहा है वहां पर, राइट? ओके, एक ही मिनट, मैं आपको वो टेक्निकल लाइन बता दूं। टेंजेंट वाली, टेंजेंट ये देखना यहां पर, बजट लाइन पीएल इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, एमसीक्यू राइट। यहां पर देखिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या किया है, वी हैव एक्सप्लेन्ड, हैविंग एक्सप्लेन्ड आईसी कर्व एंड बजट लाइन, ये मैंने आपको दोनों को एक्सप्लेन, ये दोनों आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था मैंने। और उन्होंने यहां से वेरियस कॉम्बिनेशंस को देखा है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे आईसी मैप बनाए, यहाँ पर आईसी मैप बनाया, ठीक है, और वहां से हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश करी। ग्रेट, सो गाइज अमेजिंग, वी हैव, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, this is how we have completed this budget line, we have completed the properties of IC curve, and guys this is how we have actually done everything about IC curve, right? देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ IC curve के बारे में देख लिया है। अगर आप लोगों को एक और चीज मैं बताना चाहता था, इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या होता है हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था
कि ये मोर रियलिस्टिक मेथड लगता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यार, क्योंकि मार्शल के इसमें क्या था, मार्शल के इसमें उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक चीज कह दी थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। सो यार दैट वाज एक्चुअली नॉट वेरी करेक्ट ऑन दैट पार्ट। और उन्होंने तो ये भी कह दिया क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस देखे थे, जैसे कि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए है, बुक में नहीं देखे बट कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने देख लिया। कंज्यूमर इज रैशनल। देखो यार, इकोनॉमिक्स में तो रैशनलिटी ये सबसे पहला अजम्पशन होता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम दैट द यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनरली एक्सप्रेसिबल। डेफिनेटली वी हैव सीन दैट ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंकिंग के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर वेरियस कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने लिए थे, जैसे कि ए बी सी डी, और वहां पर वो इंडिफरेंट थे। So consumer choices have assumed to be transitive. Transitive मतलब preferences, A, B, A, C, ऐसे कुछ अलग अलग choices होते हैं, preferred combinations होते हैं, and combination A has more commodities than combination B, then A must prefer B. This is very normal. जहां पर ज्यादा फायदा होगा हम लोग वहां पर ज्यादा preference देंगे, right? So ये कुछ assumptions थे, and this is how we have completed this. What is the main thing that you have to remember over here? You have to remember the properties of IC curve. You have to remember budget line, and the last but not the least, the consumer equilibrium in case of ordinal utility. I just hope that you have enjoyed the session. We have just completed with the indifference curve analysis revision. And जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है guys, I just want to tell you that if you haven't subscribed to Finance Buddies, go fast and subscribe to this channel guys, because I am coming up here with many informative videos regarding the finance, regarding the stock market, regarding the mutual funds and many more things, right? और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो है सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आप लोग इसको देख सकते हो। मिशन सक्सेस बैच आपका शुरू हो चुका है। इफ एनीवन वांट्स टू टेक द एडमिशन इन दिस बैच गाइस, हियर आर द डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ यू। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी यहाँ पर होती है। 24 month subscription 19,800, 12 month subscription 14,400 and 6 month subscription at 10,800 only, ठीक है। सो बहुत ही अमेजिंग है ये। डागा 10 इस कोड को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस जर्नी। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। आइकॉनिक में यू गेट पर्सनल कोच, यू गेट प्रिंटेड बुक्स, यू गेट इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, यू गेट डिस्कशन चैनल। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 31,500 for 12 months and 22,500 for 6 months guys. You can apply the code DAGA10, DAGA10 is the code. Combo subscription भी यहाँ पर अवेलेबल है guys. Combo subscription 28,800 and 12 month subscription 22,500. This is absolutely amazing. And yes, description में combo and combo iconic की link आपको मिल जाएगी। 59,400 for 24 months and 44,550 for 12 months. So guys, if you want to take the subscription, go fast, enroll fast and apply the code DAGA10 and just get started with your plus journey. थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर से हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग रिविजनरी सेशंस के साथ।